Dear students, coming to situation number 76. You are posted far from home just after marriage. You will. See, whether you are posted near your home after marriage or far from home after marriage, you have to understand your job is important. Your marriage is another element of your personality. It doesn't have to be mixed together. दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अभी शादी किए हैं, कोई बात नहीं. But you should understand that now you are posted. So you do your duty properly. Tell your parents to take care of your newly married wife. Make sure that she is very comfortable and request mother to take that care that she does not have any difficulty. You also time to time talk to her. कभी कभार उससे बातचीत कर लो, माँ से बोलो देखभाल करो. But अब शादी हुआ है, ठीक है, कुमार से बाहर निकलो, जिम्मेदारी को समझो. Every person who is intelligent to move on with the duties without hanging on to the old ones is a very rich in mind, is very rich in mind. उसका दिमाग काफ़ी तंदुरुस्त है, उसको मालूम है कैसे आगे बढ़ना है. So same thing, though you are just married, so never mind, realizing that a newlywed wife will have some things, so he will tell his mother to take care of her and he will concentrate on his duty. And whenever he'll get holiday, he'll come back with gifts for everyone and celebrate the time. Yes or no? यह आपका उत्तर होना चाहिए. बड़ा सिंपल सा है. कई बार लोग इसमें ओवर रिएक्ट करते हैं. ओवर रिएक्ट. योर सिबलिंग इज अगेंस्ट योर कैरियर चॉइस. योर सिबलिंग माने आपके भाई बहन आपके कैरियर चॉइस. फिर ये क्वेश्चन देखिए, एक बार आपसे पहले भी पूछा गया पेरेंट्स के लिए, दूसरे के लिए. ये मुख्य रूप से कॉन्सिस्टेंटली पूछा क्यों जाता है कई बार, टू वेरीफाई वेदर यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ और यू आर हैविंग द सेम कंसिस्टेंसी. आपकी निरंतरता है कि नहीं है. तो you can say your sibling is against your career choice. You will explain why you think armed forces will be a wonderful career for you. You will also tell why you want to go into it, what are the benefits, why you like the respect. You will convince them, मतलब उनको समझा लेंगे कि मैं उसको अच्छा करूँगा. And also tell the parents and tell everyone and thereafter go for your career. ठीक है, इसमें हताश होने की कोई बात नहीं. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कैरियर ज्वाइन करते हैं तो कभी माता पिता, कभी भाई बहन, कई अन्य लोग आपसे बार बार पूछते हैं कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. तो आपकी फंडे क्लियर होने चाहिए. देखिए, फौज की एक सबसे अच्छी खूबी ये है कि एक अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है. यू लिव लाइफ, यू ऑल्सो ट्रैवल ऑल अक्रॉस द कंट्री. बोरियत कम होती है, हर बार नई जगह जाते हैं, हर प्रकार के माहौल का आनंद लेते हैं और एक बहुत अच्छी फैमिली मिलती है वहाँ पे. वो फैमिली जिसको फौज की फैमिली बोलते हैं, वो दैट टेंड्स टू टेक केयर ऑफ यू. सो यू कैन गिव दीज आंसर्स. फैसिलिटीज़ भी होती हैं और घर के लिए आपकी सेविंग भी होती है. वहाँ की कैंटोनमेंट में आपने ध्यान दिया कि आपके खर्चे काफ़ी कम होते. सो यू आर एबल टू सेव अ लॉट. इट इज़ लाइक पोस्टिंग गोइंग टू दुबई, अर्निंग इन, or to going to America, earning good and spending little less and saving for home. But America और दुबई में जाओगे तो वहाँ की living cost heavy है. But cantonment में you have things within limits. तो इससे आपकी बचत अच्छी होती है. You can give any answer. I'm not telling you to give this answer. You just write normal whatever you want to. Is it clear? Okay, let's get going. You are stranded due to a vehicle breakdown. Stranded माने रुक गए हो, आप फंस गए हो, vehicle breakdown हो गई आपकी. अब you have to reach for an important job. If you have to reach for an important job and there is a driver with the vehicle, then leave the vehicle, reach. If there is no driver in the vehicle, then park it someplace, reach. If you have yourself to carry the vehicle, then arrange a mechanic, get it repaired and reach. Yes or no? भाई बात को ज़रा समझिए. अगर आपके पास ड्राइवर है, आपको कोई ज़रूरी काम के लिए जाना है, गाड़ी छोड़ दीजिए, आप पहले पहुंचिए, काम करिए, बाद में कोई गाड़ी मंगा लीजिएगा, रिकवरी वैन, और उससे ले जाइए. सिंपल. पर अगर आपको खुद गाड़ी लेके जाना है तो आप उसको
क्या करेंगे, मैकेनिक बुलाएंगे, ठीक कराएंगे, पहुंचिए। एम आई राइट, यस और नो? और अगर आपको खुद पहुंचना है जरूरी काम से तो गाड़ी किनारे कहीं पार्क कर दीजिए, पहले पहुंच लीजिए, काम कर लीजिए, फिर गाड़ी ले लीजिए। So you can do many things. I'm trying to give you all the ideas so that you can come up with good ideas and you can speak well. Next, let's get going. Your senior gives you an unethical order. आपको सीनियर जो आपको ऑर्डर देता है वो अनएथिकल है। हो सकता है थोड़ा झूठ की बात हो, थोड़ी प्राकृतिक कोई और बात हो, क्योंकि इथिक्स में, वैल्यूज में झूठ ये सब चीजें आती। पर आपको याद रखना है कि एथिक्स को टाइट नहीं पकड़ना है, एथिक्स को प्रैक्टिकली समझना है। कई बार हम लोग सच बोलने की आदत रखते हैं और अपने घर में समस्या खड़ी कर देते। वी हैव प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड वी टेल वॉट एवर इट इज विदाउट विजडम, बुद्धि नहीं यूज करते। इसीलिए बार बार फौज बोलती है होश और जोश। अगर आप होश से नहीं काम करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन नहीं करेंगे, इसका मीनिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू लाई। इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठ बोले, बट बुद्धिमानी से करिए। कई बार ऐसा होता है कि अब आप जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार है जो हमेशा विवाद खड़ा करता है, बड़ा शातिर है, होगा जरूर, हर घर में होता है, हर संस्था में एक दो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, आपको मैनेज करना होता है। तो वो क्या है, अगर आप उसको बताते हो और आपका अनुभव हो चुका है कि बार बार यही बवाल करता है, यही प्रॉब्लम करता है, यही प्रॉब्लम क्रिएटर है, दिस पर्सन इज द मेन पर्सन, व्हाट यू डू? यू लाई टू हिम, आई डोंट नो, और यू लाई टू हिम गिविंग हिम रॉन्ग डिटेल्स। नाउ इज इट राइट? यस, सिचुएशनली राइट है। इसी तरह कई बार आपको जब ऑर्डर दिए जाते हैं तो सिचुएशन के अनुसार दिए जाते हैं सीनियर के। तो अगर इट इज टू नेगेटिव इन द नेगेटिव सेंस, वो तो दिए नहीं जाएंगे। अगर अगेंस्ट अनएथिकल है तो उसको अंडरस्टैंड वेदर इट इज सिचुएशनली और इट इज पर्सनल। मतलब अगर वो सिचुएशनल है तो उसको फॉलो करो, और अगर पर्सनल है तो देन यू टेल हिम दैट दिस इज गोइंग रॉन्ग, आई एम श्योर ही विल करेक्ट इट। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में विरोध नहीं, समझदारी दिखाई। डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर अपोजिंग द सीनियर, शो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल टेल द सीनियर। अच्छा, अगर आप अच्छे इंसान हैं विद अ वेरी ओपन माइंड तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका सीनियर भी अच्छा होगा, ओपन माइंड से सुन लेगा। कई बार होता है कि मैंने कोई काम किसी को बताया एंड दैट पर्सन ही कम्स टू टेल मी कि सर ये वाली भी है, ओह मैं ये देखना भूल गया था, हाँ इसको ऐसे कर लो। आई टेल हिम दिस हैपेंस बिकॉज इट इज नेचुरल दैट मेनी टाइम्स वी मे डू दिस मिस्टेक, बट बीइंग फ्लेक्सिबल इन माय अप्रोच आई विल एक्सेप्ट इट कि हाँ यार ये गड़बड़ हो गया, ठीक है तुम इसको करेक्ट कर लो। सिमिलरली अगर आपका कोई ऑर्डर है जो सीनियर ने दिया है, आपको लग रहा है शायद उसने इग्नोर कर दिया, बता दीजिए, वो हमेशा चेक कर लेंगे। Why will you think that the senior is deliberately negative? तभी आप सोचोगे जब आप नेगेटिव हो। So don't think negative, be open, be appreciative, realize that senior has lot of experience। कई चीज़ वो प्रैक्टिकली सिचुएशनली देता है करने के लिए। कई बार वो अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो अगर आप धीरे से बता दोगे कि आई थिंक दिस वी आर इग्नोरिंग, तो तुरंत उसको करेक्ट कर देगा। Now there is nothing to oppose about it, but this is according to understanding. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। So please नज़रिया बेहतर करिए, नज़रिया पॉजिटिव करिए। Please don't see things in a negative fashion, don't see things in a rebellious fashion। विरोध के रूप में मत देखिए, समझदारी से देखिए, it will help you। Is it clear? Okay. You accidentally break a rule, you will। अब आपसे गलती से एक रूल ब्रेक हो गया तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई नेक्स्ट टाइम नॉट टू डू दैट, और जो तुमने किया है गलती उसको करेक्ट करो, यू करेक्ट इट। बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द आर्म फोर्सेस की संस्था में अगर आप कोई ऐसे नियम गलती करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो एक उदाहरण बन जाएंगे
और उससे आपकी ट्रेडिशन या ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू ब्रेक अ रूल, try to correct it immediately and get the things back. But if you have done it already, next time be careful. दोनों में से केस याद रखिएगा। Next time you see someone plant a suspicious object in a tray. एक ट्रेन में कोई संदेहास्पद चीज रख दी गई है, suspicious things. Now you know that you are a wise person. एक बुद्धिमान आदमी हो, एक जिम्मेदार आदमी हो। तुम देख रहे हो कोई चीज संदेहास्पद गई, दिमाग चलता है, तो आपको दिख रहा है कि इसकी हरकत ठीक नहीं है, उसको चेक करो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार वो अजीब लग रही है, तुरंत रेलवे अथॉरिटीज और बाकी सबको इन्फॉर्म कर दो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। एक प्रोसीजरल चीज होगा, उसको चेक कर लिया जाएगा। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, यस और नो। सो आपको अगर प्रिकॉशन लेने की आदत है, खास तौर से इस प्रकार की जगहों में जहाँ पे ट्रेन ब्लास्ट हो गया, जहाँ पे बस ब्लास्ट हो गया, वेयर मेनी पीपल विल गेट इंजर्ड, आई थिंक इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस, टू टेक ऑब्जर्व, रीचेक, चेक, रीचेक एंड सॉल्व। इज इट क्लियर? सो यू विल से व्हाट विल यू डू इन दैट? You will identify what it is and generally alert the railway authorities, the police authorities and recheck. Catch hold of the person also. पता लगाएंगे कि क्यों क्या रखे हो। And if it is something natural, then forget it. But if it is something more, तो safeguard. एक कहावत होती है सतर्कता, सतर्क, alertness, very important. Particularly armed forces वालों लोगों को ये क्वालिटी अच्छे से रखनी चाहिए। दे शुड बी ऑलवेज अलर्ट एंड माइंड इज अलर्ट, सो इट इज राइट। जब बोला गया है सस्पिशियस तो अलर्ट होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट गो डाउन टू 82 नंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क बियॉन्ड नॉर्मल आवर्स। यू विल, कई लोग कानून पढ़ते हैं कि मैं इतने घंटे ड्यूटी करूंगा। सॉरी, जब काम को तुम एक जिम्मेदारी लोगे, व्हेन यू विल टेक द वर्क एज अ ड्यूटी एंड व्हेन यू विल टेक ऑर्गेनाइजेशन एज अ फैमिली, तो आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो। शादी होती है, व्हेन देयर इज अ मैरिज, आप कितनी देर पूरी रात जगे रहते हो करीब करीब, एंड यू लिटरली स्लीप द नेक्स्ट डे अ लिटिल बिट। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी महसूस होती है। इसी तरह फौज में भी या जिंदगी में भी काम के प्रति अगर जिम्मेदारी महसूस होगी तो आप नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा वर्क करोगे। बट अगर आप जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करते तो नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करोगे। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू। You should take it as a challenge. Do it. Rather than saying that no, I will say no, I cannot do anymore. That means you are very poor. एक स्टेमिना होता है, स्टेमिना फिजिकल जरूर है पर होता आपके मेंटल स्टेमिना से जुड़ा हुआ। So when your mental stamina is strong, then you will have more physical stamina. So mentally मजबूत बनो, अपनी चीज को अच्छा करो. That is something which you have to learn. You are denied promotion, you will. अब आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, मना कर दिएगा, तो क्या करेंगे आप? You are denied, you will still keep working hard. देखिए कई बार अभी मेरे बहुत सारे juniors who have been student have gone for their promotional exams. किस कोई कमांडिंग ऑफिसर बन गया, कुछ रुक गए, पर एक ही बार तो होता नहीं है बोर्ड तो 2-3 बार होता है. So they will be considered, but in maybe not the first one, maybe in the second, maybe in the third, and maybe not. But then they should keep their words on. After all, their hard work and determination is important. तो अगर वो hard work और determination करते रहेंगे अच्छा रहेगा. So you are denied promotion, you will take it. You will keep working hard. You will take your challenge, and then go for the next promotional exam. Sooner or later, keep your hope alive. अब देखिए पॉजिटिविटी की बात भी है कि अगर आप पॉजिटिव है तो आपकी हमेशा आशा रहेगी कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा. सो नेवर गिव अप होप, क्योंकि एज अ ऑफिसर इफ यू गिव अप होप यू विल हैव द सोल्जर्स नॉट ऑल्सो गिविंग कि जब साहब ही नहीं चाह रहे तो रहने दो. सेम थिंग. सो ऑलवेज हैव पॉजिटिविटी, ऑलवेज हैव होप, बिकॉज होप इज लाइफ. कभी ट्रक के पीछे वाले पढ़ा करो, बहुत अच्छी लाइनर लिखे, आशा ही जीवन है.
हर शय वक्त का गुलाम पढ़ते हो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी रियली वांट। लर्न, यूज विजडम, एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि विजडम क्या करती है, हमारे माइंड को हेल्दी रखती है, कभी निराश नहीं करती। विजडम हमेशा हमें पॉजिटिव बनाती है, क्योंकि घटनाएं, परिस्थितियां हमारे को जटिल मिलती हैं। वी गेट डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट इफ वी विल लिव इन दैट सिचुएशंस, वी विल नेवर गेट आउट। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, you have to fight back, you have to be a fighter. After all, you are joining the armed forces, right? So next we come down, you are asked to spy on your colleague, you will. अब आपको किसी ने कहा है कि इनकी खोज करिए, if it is for organizational benefit, अगर कोई organizational benefit है, then you should do that. What is wrong? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि आपका एक सहकर्मी के ऊपर नजर रखो, तो नजर रखिए, इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि याद रखिएगा हमेशा, व्हाट कम्स फर्स्ट, हम लोग ने फौज में क्या सीखा, कंट्री कम्स फर्स्ट, सेकंड कम्स फैमिली, एंड यू कम लास्ट। यस और नो? तो हमेशा ये अप्रोच याद रखिएगा। जिंदगी में जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो आखिर में अकेला रह जाता है, पर जो सबके बारे में सोचता है, उसको सब लोग मिल जाते हैं। They also think for him. So the same thing applies here. You are asked to spy on your colleague for national interest, for organizational interest. You will do that and identify whatever he is doing and report the matter to the authority. फिर बताएंगे authority, अगर वो गलत कर रहा होगा और अगर सही भी कर रहा होगा तो भी बताएंगे कि ये सही कर रहा है सर, गलत बात वो लग रहा है हम लोग को, ऐसा है नहीं। But you will do your duty with full justice. Yes or no? करना पड़ेगा। संस्था की सुरक्षा के लिए कई बार आपको हर प्रकार के रोल करने पड़ेंगे, खुफिया भी पढ़ना पड़ेगा। आर्मी में इंटेलिजेंस कोर होता है, आपकी बाकी जगहों में भी इंटेलिजेंस के अलग नेटवर्क्स होते हैं। सो यू हैव टू डू दैट। नेक्स्ट, गो डाउन टू नेक्स्ट वन। यू फील इमोशनली ड्रेन्ड, यू विल। अब आप मन से बहुत थके हुए हैं। You have to, emotional drain is a mental energy. You have to gain up your energy. अपने आप से मन को मजबूत करना पड़ता है कि we have to do it. So go take a small bath, थोड़ा मुँह हाथ धो और अपने आप को cheer up करो. Have a little good coffee, good tea and get back to action. कभी भी emotions को जितना तुम प्रमोट करोगे, कई लोग आपको मन से परेशान कर देंगे, बहुत परेशान कर देंगे, क्योंकि उनका मन इतना परेशान करेगा आपको। उनका मन में हमेशा शंका, आशंका, बहम, डाउट, कंट्रोल, फियर, ये सब भरा रहता है, तो वो आपको परेशान कर सकते हैं। कई बार वी फाइंड दैट मदर्स हु बिकम वेरी ऑब्सेस्ड, अपने बच्चे की कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ जाती है, वो बच्चे को जीते जी तक परेशान कर देती है। एंड इट इज़ ट्रू, साइकोलॉजिकल केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड कि ऑब्सेशन ये इंसान की मानसिक सोच से बनता है। ही बिकम्स जुनूनी, दीवानापन हो जाता है। दीवानापन मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती स्थिर, रिच विद सैक्रिफाइस, रिच विद अंडरस्टैंडिंग, रिच विद केयर। मोहब्बत दीवानापन नहीं होती, और जो दीवाना होता है वो मोहब्बत नहीं करता, वो जुनूनी पागल होता है। एंड व्हेनेवर अ पर्सन इज मेंटल, ही डिस्टर्ब्स अदर्स। सो आपको हमेशा याद रखना है कि इमोशंस को अपने कंट्रोल रखना है। आप इमोशनली टायर्ड हो रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड देन forget about those things and move on to your action, to your work. Is it clear? Okay. Your friend asks for help in doing something illegal, you will. आपका दोस्त आपसे इलीगल कुछ कराना चाहता है, you will. देखिए, you should remember one thing, that country comes first, family comes first, second and you come last, but you also are important. अगर आप गलती करोगे, किसी के भी कहने पे बहकावे में कुछ इलीगल करोगे तो फंसोगे, तो आप you will fall into the trouble. And even if it is a friend or anyone, remember, friend has to be identified. एक होता है सहयोगी, एक होता है दोस्त. Right? There are some people who are एबेटर माने नकारात्मक काम में मदद करना, और एक होता है सकारात्मक काम करना। जो आपकी सकारात्मक दोस्त है उसको तुम मानिए, और जो नकारात्मक है
उसको सोचिए. इफ यू हैव विजडम यू विल ऑटोमेटिकली नॉट फॉल फॉर इट. आपको यू शुड हैव द विजडम टू डू दैट. फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप ये नहीं है कि आप उसकी बातों में आके गलत सलत करने लगे, तब दोस्ती थोड़ी ना है. ये तो फिर उसकी होशियारी. इसलिए इलीगल काम में किसी का साथ देने में आप भी आगे चल के फंसोगे. So whether you've done it because you wanted to help your friend or otherwise, so I think your wisdom button should always be alert. आपका जो बुद्धिमानी का बटन है वो हमेशा alert रहना चाहिए. जब कभी ऐसा हो तो you politely deny, I will not do it, I am sorry. Answer can be short. समझा इसलिए रहा हूँ ताकि बात के हर विकल्प समझ में आए. You have all the time to understand it properly. That's it. You are asked to lead a team with less experience. You will. अब आपकी टीम के पास less experience है पर आपको lead करना है. Never mind. You have experience. You don't have experience. Okay, you gain experience. You read from different experience. You learn from other sources. और जो सीखो उनको सिखाओ, उनको बताओ. Lead them, teach them what all can be possibility. एक छोटा सा सेशन में पॉइंटर्स में explain them points. They don't have experience, but now you have given them experience which you gained from other sources. अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो. And now when they are rich with information, they are equally good as an experienced person, provided you are making them do it. अगर आपके अनएक्सपीरियंस है, अनुभवी कम है, फिर भी उनको हौसला देना पड़ता है. आप क्रिकेट मैच देखते हो, you find some players are new, yet good captains come and tell them, don't do this, do this, do that. And they keep correcting them. And over the period, those people do well. So experience doesn't matter too much. Yes, it matters. क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छा होगा, पर नहीं है तो अब रोना धोना नहीं है, सोल्यूशन सॉल्व करना है. So you will add their experience by gathering information, training them and making them understand, watching them more carefully. ताकि वो गलती ना करें. Got it? Okay. Now you lose your way during a march. Night march में आप रास्ता भूल गए तो find out. Get back to the navigation and then do it. I remember you have given me the situation. We had a night march in OTA long back and we guys lost track. There was a guy who was given the navigation और उसको दिशा देना था, वो अपना अच्छा था, बट हो गए दिशाहीन. अब नाइट मार्च में तो अंधेरा होता है, तो हम लोग की पहले नाइट मार्च होती थी ओटीए के बाहर और वो गांव एरिया में बिहाइंड दी एयरपोर्ट. तो हम लोग गुम हो गए. अब हमारी टीम जिसको रात के 11-12 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था, हम लोग लौटे सुबह 4 बजे. तो दिस हैपन्स, इट इज़ वेरी नेचुरल, बट देन that does not mean that you have to panic. You have to be more energy. और करनी पड़ी एनर्जी, क्योंकि जो चीज़ हम लोग ऑफ ट्रैक चले गए काफ़ी किलोमीटर, तो ऑफ ट्रैक वापस भी आना पड़ेगा और उसके बाद लंबा हुआ. So these things happen, but that time you don't have to get angry. You don't have to be frustrated. You have to be calm. Get your stamina together. Yes or no? Or stamina together. Get your navigation right. आपसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, करेक्ट द पाथ नाउ विद मोर एनर्जी, कंप्लीट द मार्च. गॉट इट? सिंपल आंसर है पर समझाना जरूरी है. सो आई एम डूइंग दैट. नाउ वी कम डाउन. योर सबऑर्डिनेट इज मोर स्किल देन यू. आपका जो बंदा है वो आपसे ज्यादा निपुण है. सो यू डोंट हैव टू फील. ये ईगो प्रॉब्लम भी आती है कई लोग को, लगता है अच्छा वो ज्यादा जानता है उसको पीछे डालो, नहीं लाना सामने. अरे लेट हिम डू, बट वर्क विद, help with him and watch and learn the skill. तुम भी सीख जाओ. Why keep it as a ego issue always? वो निपुण है तो आप गधे थोड़ी ना हो, बुद्धि है आपके पास. Learn from him, not to belittle him, but to be good at it, good like him. क्योंकि कई बार when you as an officer or you as a commander are not updated, इसीलिए हम लोग अपडेटिंग के लिए कराते हैं. इसीलिए आपकी जूनियर कमांड होता है, सीनियर कमांड होता है, आगे हायर कमांड होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड नहीं कराएंगे
And if you will feel belittled in front of the subordinate, somewhere it will become a disease. So you have to improve on that. Is it clear? So आपको उसको समझना है कि हाँ ये है, तो I am going to do this. So वो जूनियर है, वो ज़्यादा अच्छा जाता है, उसको करने दो, बट साथ साथ में उसके आप भी सीख लो. So maybe you will take little time, but over the period of time you will also become skilled. So why are you feeling down? No ego issues. Learn, keep improving. बल्कि इसमें officer should keep learning, या जो भी आप लोग बनना भी चाहते हो, तो keep learning from different source. जितनी knowledge, जितना अच्छा अनुभव, जितनी अच्छी सीख, उतना अच्छा आत्मविश्वास. You will have better self-confidence. So remember that. Your plan fails during a mission, you will. अब आपने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया. Never mind, immediately be alert. Make an alternative plan. एक नया प्लान बनाइए. देखिए डायनेमिकली क्या चीज चाहिए. Sit down for a short period of time. Correct it. कई बार मैच खेलते हो आप, और जो स्ट्रेटेजी से खेल रहे हो आप देख रहे हो प्लेयर आपको हराया जा रहा है, तो क्या करते हो? कई बार कोच टाइम आउट ले लेता है. क्यों लेता है? बिकॉज वो बताता बेटा ये स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी, चेंज करो. इसी तरीके से अगर आपका प्लानिंग मिशन में कोई प्लान फेल हो गया है, तो आप रुकिए, चेक करिए अपने प्लान को, उसको करेक्ट करिए, उसमें नए एडिशन जोड़िए. प्रैक्टिकल प्लानिंग को, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो भी आपको दिख रही है उसके हिसाब से नया प्लान बनाइए एंड मेक इट सक्सेसफुल. इज इट क्लियर? ओके. यू फॉरगेट एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन, यू विल. आप एक इम्पॉर्टेंट डेडलाइन भूल गए, इमीडिएटली से सॉरी, एंड इफ वॉट एवर इट इज ट्राई टू rush with whatever is ready so that you at least may be little late but still you try to reach as early as possible. आपने कोई तारीख दी गई थी वो भूल गया, कोई बात नहीं, अब उसको याद आ गया ना, तो आप उसका डैमेज कंट्रोल करो. डैमेज कंट्रोल का मतलब जल्दी जल्दी पहुंचो, उसको कंप्लीट दो. डांट पड़ेगी खा लेना, बट कम से कम काम को दो जिससे कम से कम देरी में वो काम तो पूरा हो. Complete it. Is it clear? So I have a very flexible but a very open attitude. आपके अच्छे attitude आपको एक अच्छा अफसर बनाएंगे. They'll make you more understanding. People say psychology में ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दे. अरे भैया पहले attitude तो सुधार लो, अपनी approach तो सुधार लो, और approach में consistency तो सुधार लो. At least improve your approach, improve your consistency in the approach. If you think only 5, 4, 5 or 20, 2, 3 SRT solution can do the problem, I'm sorry to say no, no, no. They give you 60 SRTs, and in that at least you attempt 30 to 40 SRTs. Am I right? And when you are inconsistent in those 30 to 40 SRTs, what happens? It speaks that you are unstable person. You are not having the right quality, you are giving good answers. It is like किसी के हाथ में चौका लग गया गलती से, कभी छक्का लग गया, पर वैसे हर बॉल पे नहीं खेल पाता है, तो थोड़ी देर खेलेगा, 1 ओवर 2 ओवर आउट हो जाए. So we want constable people, I mean consistent people. We would love to have Rahul Dravid instead of Chris Gayle. Chris Gayle, Brendan McCullum या कोई भी मारपीट वाला जो आया, कभी चल गया तो चल गया, उसको नहीं चाहेंगे. हम लोग स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए. Is it clear? So I hope you have understood what I want to say. Important deadline भूल गई, never mind. You try to go wherever. You face discrimination. लोग आपको अलग थलग कर देते. No problems. Wait, have patience. Over the long period of time, you will be able to break through and make better relations with all. मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ. You know, we were children of defense officers, and particularly in my case, since my father was in ordnance, first he was in 1 Mahar and then he shifted to Army Ordnance Corps after a small injury in one of the first battles or others. And whatever it was, when he shifted, then naturally ordnance में तो भाई family stations होते हैं, तो हम लोग हमेशा साथ ही में स्कूल जाया करते थे. हर 1.5-2 साल में नया स्कूल तब्दील होते थे. We used to go into different city, different schools. Every time it was not central school, many times it was different convent schools. And whenever we go to a new convent school or other place, we were ignored for 15 to 20 days by the regular classmates.
कई बार रेगुलर क्लासमेट्स हम लोग को तवज्जो नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हम नए आए। एक तरीके से हमारे साथ भेदभाव होता था। बट वी हैड लर्नड टू बी पेशेंट, टू बी पॉजिटिव। हम लोग पेशेंट रहते थे, पॉजिटिव रहते थे, हर एक्टिविटी में दूसरे की मदद भी सोचते थे। वी यूज्ड टू वर्क नाइसली। एज अ रिजल्ट बाद में हमारी दोस्ती हो जाती थी। सेम थिंग अप्लाइज टू यू। व्हेन यू विल हैव डिस्क्रिमिनेशन, इट इज ओनली अ शॉर्ट साइटेडनेस, थोड़े दिन का होता है। और जब आप इंसान को पहचानने लगते हो, दिक्कत की कुछ परिस्थितियां आती हैं, when he helps you more than the others, then you learn to value the person also. So have patience, be positive, and you will overcome all discrimination. Remember this. Your cadet is mentally harassing another. एक cadet दूसरे को, तो you will have to, if you are senior there, you will go and make them understand. Make the other person, if he does this, he will be punished. And if anything happens, he will be punished. Now automatically accountability डाल दो, किसी पे जिम्मेदारी डाल दो, अपने आप समस्या खत्म हो जाती। एक पुरानी कहावत थी कि कई बार जो चोर है उसी को बना दो थानेदार, तो आधी चोरी तो वहीं खत्म हो जाती। यस और नो? सो व्हेन यू मेक द नेगेटिव पर्सन लिटिल, ये प्रैक्टिकल विजडम से आता है। व्हेन यू मेक द नेगेटिव पर्सन फर्मली अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग, ही विल स्टॉप डूइंग इट। सो ऑलवेज रेप्रिमांड हिम, डांटिए उसको, समझाइए और जिम्मेदारी दे दीजिए, हो गया खत्म, वो बंद कर देगा मेंटल हैरेसमेंट। नाउ ऑल्सो द अदर पर्सन को ही बोलिए, बी मोर मेंटली स्ट्रांग, टेल हिम द प्रोसेस कि अगली बार ये करे तो आप कहाँ पहुंचोगे। सो दिस वे यू हैव टू वॉच देम। याद रखिए, व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर, यू नॉट ओनली विल बी डूइंग स्ट्रांगली विद योरसेल्फ बट ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ योर पीपल। उन लोग की भी परवाह करना आपको आना चाहिए। आप सिर्फ पिता आगे से तलवार लेके चलने के लिए थोड़ी ना बने। यू हैव ऑल्सो फादर बिकॉज यू आर to protect your children. Am I right? So you should know how to protect your cadets or others. Is it clear? Now we go down. You are being stalked, followed, you will. कोई आपके पीछा कर रहा है, you will. देखिए, whenever you get this feeling, I have only one thing, that you walk and somewhere at a public spot, रुक जाओ. Stop for a moment in the public spot. See what is the matter. Be patient. Ignore him, but see, if he goes on, that means he was not following you, you were only feeling so. हो सकता है कि आपको लग रहा हो ना, but if you find it is so and it is public spot, then you can go and directly ask him, what is the matter? Do I know you? What is the matter? So probably it will not. और ज़्यादा ज़रूरत लगे, खास तौर से फौजी हैं आप, आपको लग रहा है, तो then you can report the matter to the police, या call your colleagues and surround him, ask him what is the reason. पीछे से बुला लिया, कोलीग्स आ गए, सब लोग घेर लिया, पूछ लिया क्या बात भाई, yes or no. So intelligent, you don't have to fight, but you have to be intelligent to solve your problem. Next we come down, where are we? You are ambushed during patrol, you will. अब आप कहीं पेट्रोल में जा रहे हो, चारों तरफ से एकदम घाता होगी, तो क्या करोगे? You know as the serving persons that you should immediately lie on the ground. Immediately lie on the ground, tell everybody to take protection, move as far as from the ambush point, try to safeguard everyone, try to help move into such positions where you can get good firing positions and you can attack. Presence of mind बहुत जरूरी होती है ऐसी परिस्थिति में, और तत्काल जो सिंपल प्रोसेस होता है उसको भी याद रखना होता है। कई लोग भूल जाते हैं, उसी समय जोश में आ जाते हैं, या उसी समय समझ नहीं पाते, घबरा जाते हैं, तो वो लोग इसमें ज़्यादा घातक रूप से सफ़र करते हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंटली याद रखते हैं, दे इमीडिएटली जंप इनटू अदर साइड्स एंड देयर आफ्टर सेव देमसेल्फ, गेट देयर गन्स टुगेदर, फिर अटैक करके निकल आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ऑड सिचुएशन। कोई बात नहीं, मान लिया कि सब घेर ही लिया, तो तुम यार पकड़ लो, फिर भी फाइट बैक तो होना चाहिए। So that intelligence and the spirit of fight back will show how good you are as a warrior, as an officer also. You are required to evacuate people under threat. कुछ लोगों को, आपको जो लोगों को चेतावनी मिल रही है उनको खाली करना है, तो you will go and convince them, tell them कि भैया तुम, आपके ऊपर खतरा है, you are in danger,
you have to be moved from here. Please immediately move from here. Systematically do that. Keep an alert mode कि कोई और जन उसी समय खतरा ना आ जाए. Be alert. Do it quickly. Do it rightly. जल्दी खाली कराओ, जल्दी चीज़ें अरेंज कराओ. ये कोई नहीं है पिकनिक स्पॉट की अब 5 दिन में खाली करेंगे. अब जब थ्रेट है, कोई धमकी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डेंजर है, तो आपको तत्काल काम करना है. सो एक्ट विद इमरजेंसी, एक्ट विद अर्जेंसी, कन्विंस देम एंड कंप्लीट इट. यू गेट कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स इन अ क्राइसिस. अब क्राइसिस है, उसके बाद एक बोलता है, एक बोलता है ये. Now this is a crisis time. Here you should never panic. You should immediately contact both the orders and tell them that they are giving this, they are giving this. Let's make a common plan and politely come to the common plan and do it. Crisis में आपको तुरंत कॉमनैलिटी ज़्यादा लानी है, क्योंकि क्राइसिस में अगर अलग अलग काम करेंगे तो क्राइसिस मल्टीप्लाई हो जाएगी. बट क्राइसिस में अगर कॉमनैलिटी ला देंगे तो क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी. So think like that and I think you will get a good answer there. You fail to meet expectation, you will. आपने जो सब लोग ने आपसे उम्मीद की थी वो आपसे नहीं हुई, कोई बात नहीं. Say sorry to them and next time work more harder. और मेहनत करिए और अच्छा करिए and try to fulfill the expectations. Is it clear? जिंदगी रुकती नहीं है, हिम्मत भी रुकती नहीं है और मेहनत भी रुकती नहीं. तो अगर आपका जज्बात जिंदा है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, आपको लग रहा है लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे पर आप नहीं कर पाए, उनको सॉरी बोलिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया. बट नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू इट एंड नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए. डू इट. नेक्स्ट, योर क्वेश्चन फॉर समवन एल्स फॉल्ट. किसी और ने गलती की और आपसे पूछा जाए, कोई बात नहीं. यू टेल देम व्हाट इज द ट्रूथ, टेल देम व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग एंड क्लैरिफाई द मिसअंडरस्टैंडिंग. आप मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करिए. राइट, आइडेंटिफाई एंड नेक्स्ट टाइम करेक्ट द फॉल्ट. ये अगली बार गलती ना आपसे होनी चाहिए ना आपके दूसरे जन से होनी चाहिए. एम आई राइट? सो दिस काइंड ऑफ cool approach rather than saying why should I be punished, you to talk to the don't get panic, be relaxed and talk clear and do it. Last one, you are asked to sacrifice your position for a junior. You will. अब आपको एक पोजीशन बनाई गई और जूनियर को बोला जा रहा है करिए आपकी जगह. डोंट बिकम इगोइस्टिक. आप में से बहुत सारे लोग कई बार इगोइस्टिक हो जाते हैं. I remember during that night march also somebody was saying, I don't want to do this, I will do this, I'll do. No, this is not done. Duty given is to be accepted. And more importantly, अगर कोई junior को लगाया जा रहा है, no problems, let him give. Because organizational benefit आगे आता है. अभी क्या कहा था आपसे? Nation come first, family and organization come second, and you come last. तो ईगो को किनारे रखिए, अपने आप को पीछे हटाइए और काम को बढ़ चलने दीजिए. इज इट क्लियर? सो दीज आर समथिंग विच हैव टू डू. एनी डाउट्स? सो वी हैव डन 100 SRTs. आई होप इन दिस 4 sessions of 25 each you have been able to pick up some knowledge. माफ़ी चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि लिखित उत्तर दे दीजिए. ये ठीक नहीं होगा क्योंकि आपको अपनी भाषा में उत्तर देना है, अपनी सोच बढ़ानी है. यू हैव टू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस. You have to sequence them. चलिए मैंने मान लीजिए उत्तर आपको लिखवा भी दिया, तो अगर आप समझेंगे नहीं तो वहाँ पे जब ऑफिसर आपसे इंटरव्यू में या अन्य जगह में पूछेगा घुमा घुमा के ऐसा नहीं तो तब क्या करोगे, ऐसा नहीं तब क्या, तो कैसे आंसर देंगे? सो डोंट लर्न आंसर्स, एक्सप्लोर आंसर्स एंड आई एम श्योर विद योर विजडम यू विल कम अप विद गुड आंसर्स. यस, 1.5 to 2 liners की आंसर्स तैयार करिए, कॉमा कॉमा करके लिख लीजिए. रेस्ट ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू. यू कैन कनेक्ट विद अस. वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू वाया ऐप और वाया psychological assessment program. We'll try to help you. But open your thoughts, do well, become a complete personality, enjoy your life, enjoy success. Jai Hind.